Assalamu alaikum. This discussion is related with my machine learning class, and we are talking about various errors, various formulas which you can use to calculate errors between actual and measured data values. So just brief introduction of the notations and definitions here. So a continuous data value is a value which is a numeric value which is non-categorical, where categories are not fixed. For example, if we have number of COVID-19 cases, in this data can be 5, 10, 15, 100, 2000. Here data is numeric, whole numbers, but categories are not fixed. We are not fixing, or we can't say that some specific kind of number of categories here. Similarly, our data can be floating point data as well. For example, the temperature of a patient 100, 100.5, 98.6, etc. So data value. Y is a variable representing here actual data values, and y prime or y cap or y hat is representing estimated or predicted data values. Yi is the ith data value of the variable y, and yi prime is the estimated data value related with the actual data value, actual ith data value. So what is the error? Error is the difference between actual and predicted data value. So absolute error is the absolute value of the error. Squared error is the square, that is the power 2 of the error, and mean bias error is the average of all the errors or residuals. Errors also called the residuals. So every mean bias error is the average of all the residuals. Mean absolute error, average of all the absolute error is the mean absolute error. Mean squared error, average of all the squared errors, and root mean square is the square root of the mean square error. Let's do it with the Excel sheets just to understand these notations and these basic definitions. Suppose that this is y is the actual data, and it is representing number of corona cases on a particular date, and y prime is the measured or predicted number of corona cases on a particular date, for a particular date. For example, May 16 actual corona cases were 5 and predicted cases were 9. So this is y1 actual, and this is y prime 1. This is y4 and this is y prime 4. So what is the difference or bias? What is the error difference in terms of bias or error? So we can find this y minus y prime. आप नोट करें, आप लोगों को एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए. To be a good data scientist, we need to learn various data analysis tool. So Microsoft Excel is a very valuable data analysis tool. Remember this. Also practice with the Excel sheets as well. Okay, here we can drag this formula down. So it is these are the different differences of, say, 30 minus 27 is 3, 18 minus 18 is 0. So what is y prime minus y? We can find bias using y prime minus y as well. It is y prime minus y. So these are the differences. So note that difference or bias error can be negative or positive depending on the actual or predicted data values. It can be 0 as well, because if there is no error. So what is the absolute value? If we want to avoid negative values, we can take the absolute value. Absolute value, say absolute value of y minus y prime, absolute value of this, absolute value. We can apply some function ABS option. This is the function to find the absolute value in Excel. So absolute value of minus 4 is 4, absolute value of minus 11 is 11, absolute value of 3 is 3, absolute value of 0 is 0. So y minus y prime, absolute value of y minus y prime. This is the absolute value. We can also find we can also avoid negative values by applying the square of the value. For example, we have a power function in Excel. If we take square, that is power 2 of this minus 4, it will be 16. Minus 11 square is 21, 3 square is 9, 0 square is 0. Okay, so
these are some basic definitions and this is practical implementation of using Microsoft Excel. Now if we know that we have 4 data points, that is I is equal to 1 to 4. So y1, y2, y3, y4, y prime 1, 2, 3, 4. So what is, if we want to report average or aggregate measure of this, we need to find average. How we can find average? We can apply the average formula or we can make a formula ourselves. So average is total values divided by number of values. So if we want to find the bias error, mean bias error, we need to find first mean or average. So let's find average of all these values. So let's calculate the sum of y minus y prime. Sum, apply sum function, sum of y minus y prime. So this is the sum of y minus y prime. What would be the average? Average will be this sum divided by total data points. We have 4 total data points, so this is the average. So this is, we can say this is the average, okay. And actually this is mean bias average. -3 is actually the mean bias average. So what about this? We can also find mean the sum of y prime minus y by using the sum function, okay. Yeah, and again dividing this sum by total number of data points. So again mean bias average is, this is also, this mean is actually this mean bias average, okay. This is mean bias average, okay. Again sum of these data points, sum of these. What is this? This is the sum of absolute errors, huh? It's okay. This is the sum of absolute error. What is the mean of this? This is the mean, that is 18 divided by 4. So this mean of absolute error, this is actually mean of absolute error. So we can say that 4.5 actually the mean absolute error. So what about the sum of squares? So sum of the square is equal to sum of these data values. This is sum of the squares. What is the mean? Mean is actually this sum divided by total number of data points. So this is 36.5. This is mean squared error. Actually this is mean squared error. We can say that this is actually the mean squared error, okay. So what is the root mean square error? Root mean square error is the square root of mean square error. Hopefully you got the point. You can apply formulas, Excel formulas, to calculate these formulas or these functions. आपने नोट किया, मैंने अभी एक्सेल शीट्स के थ्रू आपको फार्मूलाज क्विकली अप्लाई करने सिखाए थे. एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आपको एक्सेल आना चाहिए. और साथ साथ मैं इधर आपको क्या इस लेक्चर में क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स की नोटेशन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ. और सिर्फ ये ज़हन में ना रखिए कि जस्ट हम सिर्फ कुछ फंक्शंस को सीख रहे हैं या कुछ फार्मूलाज की मैथमेटिक्स सीख रहे हैं. मैं साथ साथ आपको एक्सेल फार्मूलाज, एक्सेल शीट्स को भी यूज़ करने की मोटिवेशन भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा यूज़ करके भी दिखा रहा हूँ. और नो डाउट हम पाइथन को भी यूज़ करना सीख लेंगे. और साथ साथ कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ मैथमेटिक्स की नोटेशन से भी आपको यूज़ टू होना है. एरर होता क्या है? डेविएशन है एक्चुअल डाटा वैल्यू से. एग्जांपल के साथ हमने बात कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, एक्चुअल पेशेंट का टेम्परेचर 100 हो और हमने मेजर कर लिया है 101, तो ये क्या है? डेविएशन है एक्चुअल डाटा वैल्यू से. सो एरर अबव भी हो सकता है एक्चुअल वैल्यू से और बिलो भी हो सकता है. सो जैसे अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कोरोना केसेस अगर 50 हैं एक्चुअल और हमने मेजर किए हैं 50, प्रिडिक्ट किए हैं 55 और या प्रिडिक्ट किए 45, तो एरर क्या है? 5 यूनिट्स है अबव और बिलो. सो डिफरेंट वेज है एरर कैलकुलेट करने के. ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि हम डिफरेंस के थ्रू भी एरर फाइंड करते हैं. और डिफरेंस हमें पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है. तो अगर हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को अवॉइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और स्केयर भी फाइंड कर सकते हैं. अगर एक से ज़्यादा डाटा वैल्यूज़ हैं तो हम क्या करते हैं? एग्रीगेट एरर्स को एग्रीगेट मेजर के थ्रू रिपोर्ट करते हैं. एग्रीगेट से मुराद क्या है? एक से मीन, मीडियन, मोड वगैरह हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट मेजर के लिए. तो हम इधर मीन या एवरेज यूज़ कर रहे हैं इस डिस्कशन में. सो हाउ टू कैलकुलेट एरर्स?
या डिफरेंट एक मेजर है डिफरेंस का, वो ऑलरेडी मैंने बात पहले भी की है। एरर क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में। सो हम ये डिफरेंस की एग्जांपल आपके सामने है। ये डायरेक्टेड मेजर है, दैट इज़ कि ये रेल लाइन के राइट साइड को और नेगेटिव लेफ्ट साइड को शो कर रहा है। राइट साइड को मुझसे मुराद है कि जीरो के राइट पे रेल लाइन हो, अगर जीरो के राइट की पे बात हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू, रेल लाइन पे जीरो के लेफ्ट पे होता है नेगेटिव वैल्यू। सो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव सेंस मैयर इतनी यूज़फुल नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज़, मगर ये कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन के लिए नेगेटिव वैल्यूज़ यूज़फुल भी हो सकती हैं। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने एरर्स का में नेगेटिव वैल्यू ख़त्म करनी है, कुछ कह सकते हैं नहीं, हमारी इंटरप्रिटेशन के लिए नेगेटिव वैल्यू इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम ये भी देखना चाहते हो कि से y माइनस वाई प्राइम अगर हमने यूज़ किया बाइस फाइंड करने के लिए या रेजिडुअल फाइंड करने के लिए, सो अगर ये नेगेटिव वैल्यूज़ इसी फार्मूला को फिक्स कर लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ ये क्या इंडिकेट कर रही हैं कि हम एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और पॉजिटिव वैल्यू क्या प्रिडिक्ट कर रही है इस फार्मूले को अगर हमने फिक्स किया हुआ है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या प्रिडिक्ट कर रही है, हमारी एक्चुअल वैल्यू, हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से लोअर वैल्यूज़ रखती हैं। सो ये इंटरप्रिटेशंस डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स पे कि हम किस तरह की इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। सो नेगेटिव वैल्यूज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो एक चीज़ आपने नेगेटिव वैल्यू को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर डी डिफरेंस है, नेगेटिव डिफरेंस को कैसे शो करते हैं, डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो मतलब होता है डी इज़ नेगेटिव। इसी तरह से नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, या तो जीरो होगा वो या पॉजिटिव होगा। अगर हम कहें डी इज़ नॉन नेगेटिव, इसका मतलब इसको यूँ लिखेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमें मैथमेटिक्स की नोटेशन से यूज टू होना है। अगर हम कहते हैं डिफरेंस डी नॉन नेगेटिव है, तो उसको हम यूँ लिखेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस है। एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन या फार्मूला ये है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस कैसे हो, अगर डी नेगेटिव है, इफ़ डी इज़ नेगेटिव देन मल्टीप्लाई डी विद -1, दैट इज़ कि टेक द इनवर्स ऑफ डी, दैट इज़ कि अगर -5 है तो उसको 5 कर दो। अगर डी नेगेटिव नहीं है तो क्या करो, एल्स पे अगर डी नॉन नेगेटिव है, अगर नॉन नेगेटिव है दैट इज़ के जीरो है या पॉजिटिव है, तो उसको एज इट इज़ रिपोर्ट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल -500 को क्या रिपोर्ट करो, 500 -1, -500 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 से, तो 500। जीरो को एज इट इज़ रिपोर्ट किया जाए, 500 जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको भी एज इट इज़ रिपोर्ट करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन। एब्सोल्यूट एरर यही है कि y माइनस वाई प्राइम या वाई कैप की एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट एरर को शो करती है। ये अनडायरेक्टेड मेजर है, इसमें कोई साइन नेगेटिव साइन नहीं है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जीरो और पॉजिटिव को ये हमें शो करता है। इसी तरह से स्केयर्ड एरर क्या होता है, एरर का स्केयर ले लें, डिफरेंस का स्केयर ले लें। सो डिफरेंस का स्केयर ये भी अनडायरेक्टेड मेजर है। ऐसी स्केयर्ड एरर जो है ओरिजिनल यूनिट से तो दूर है, क्योंकि स्केयर हमने ले लिया ना, ऐसी एरर को एग्जैजरेट कर देता है। सम टाइम हमारी इंटरप्रिटेशन में या हम एरर को बहुत ज़्यादा पेनल्टी डालना चाहते हैं, तो उसका वक्त ये बहुत यूज़फुल है, ये यूज़फुल हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है। सो नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये स्लाइड आपको मैथमेटिकल नोटेशन में मीन बाइस एरर को शो कर रही है, जो ऑलरेडी मैंने एक्सेल शीट में आपको एक्सप्लेन करके सिखाया भी है। सो मीन ये क्या समेशन नोटेशन है, i = 1 to n के n डाटा पॉइंट्स हैं, हम n डाटा पॉइंट्स के पहले समेशन कर रहे हैं और टोटल n से डिवाइड कर रहे हैं। n हमारे केस में कितना था, अभी हमने जो डाटा किया वो 4 था। सो ये ऑलरेडी हम नोटेशन से यूज टू हैं। बाइस एरर क्या होता है, वाई आई माइनस वाई कैप या वाई कैप माइनस वाई आई तमाम डाटा पॉइंट्स के लिए। सो सम ऑफ वाइस क्या होता है, ये समेशन नोटेशन या जो इधर यूज़ हो रही है ये सम है, और समेशन नोटेशन को एक्सपेंड करें, आप समझ कर सकते हैं कि I1 to n हो वाई आई माइनस वाई आई कैप में, I1 पुट करें तो क्या होगा, y1 माइनस y1 कैप, प्लस ये समेशन का मतलब होता है प्लस n तक हम समेशन कर रहे होते हैं, 1 का इसका मतलब ये प्लस है, तो n जब I2 होगा तो क्या करेंगे, y2 माइनस वाई कैप अप टू सॉन। तो ये समेशन नोटेशन से भी यूज़ टू हो आप, ये समेशन नोटेशन से यूज़ टू होना ज़रूरी है। ओके, सो मीन बाइस एरर, सिमिलरली मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, हम जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स को सम करें और टोटल से डिवाइड कर दें। ये मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको सम को आप इस तरह से भी यूज़ हो सकते हैं कि सम का मतलब क्या है। इसी तरह से रूट मीन स्केयर एरर क्या है, जितने भी स्केयर्स एरर हैं, पहले तो इधर इसमें एक गलती मौजूद है, इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मीन स्केयर एरर पहले फाइंड कर लेते हैं। मीन स्केयर एरर है क्या, मीन स्केयर एरर के हम जितने भी स्केयर्स एरर हैं उनका पहले सम ले लें और टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट से डिवाइड कर लें। मीन स्केयर एरर, रूट मीन स्केयर एरर क्या होगा, स्केयर रूट ले लें, स्केयर रूट ले लें मीन स्केयर एरर का, ये नोटेशन से ऑलरेडी हम यूज टू हैं। ओके,
सो एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ये रिग्रेशन मॉडल्स में, स्टैटिस्टिक्स में, रिग्रेशन एनालिसिस के लिए भी, और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स में ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं उनको एवेलुएशन के लिए। और ये एवेल्यूशन एल्गोरिदम में एवेल्यूशन फंक्शन के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोट दैट वी मस्ट नो दैट विच फार्मूला एंड व्हेन टू यूज़, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली।